root locus. So there are two root locuses possible. One is direct root locus, one is complementary root locus. Let us see what is direct root locus. So for the range of k, okay, let's say k is positive. K is positive. In that case, k and 1k and this the other side -1 should have opposite sign. When k is positive, and if k is negative, let's say, then also they must have opposite side. So the whole point is the k and the other side must have opposite sign. We should take care what is the sign of k proper. In that case it will be a DRL. If the signs are same, then it will be a CR, complementary root locus. Now one thumb rule before starting any root locus problem is you have to make all the coefficients of S positive and S must be independent. Coefficient of S must be 1 always. It can't be 2S, 3S and so on. It has to be S. So do according, and it has to be S and it has to be positive also. So it has to be 1 only. Not even -1, it has to be 1. Let's keep that particular rule in mind before moving ahead. Now rules of DRL. So first rule we have already discussed. Then first of all our root locus should be, we need to identify the existence on real axis. So all the poles on its right must be odd. Let's say here, okay, and your pole is here. These are the poles. Then the place where root locus would exist is this point. Here it won't exist, here it will not exist because the number of poles towards the right of this are 2. So it will not be existing here, it should be always odd. Fine. We need to take that upon consideration. Now originating point of root locus will be pole, originating point would be pole, and arrival point would be, would be 0. Originating point would be pole. Now let's say S can have 3 possibilities. S can be real, S can be imaginary, and S can be infinity also. Imaginary plus real, that kind of quantity, it can be infinity also. If S is 1, then angle of departure or angle of origination would be real axis. Origination. If it is imaginary, then angle of originate, then it will originate from angle of departure. And if S is infinity, let's say if you have only zeros, your G of S is nothing but S square. In that case what? It will gaze asymptote. Its angle of it would be following asymptote. So angle of departure, origination, not departure, angle of origination would be asymptote. Fine. Similarly for for zeros also. So zeros में क्या करोगे आप? Zeros में again 3 possibilities would come. If it is -1, then it will terminate. At real axis. If it is imaginary, it will terminate by following arrival angle of arrival. And if it is infinity, then it will terminate following the angle of asymptote. Now calculation of asymptote and centroid. Okay, we'll do it at one go. So this both possibility exist only when poles at infinity wala concept is there. Or in other words, we can tell that when P is not equals to Z, only then calculation of asymptote and calculation of centroid will make sense. So calculation of asymptote is what? Nothing but 2k minus 1 into pi upon P minus Z, mod of P minus Z. Now let me tell you, for P minus Z is equals to 1, angle is 180 degree. For P minus Z is equals to 2, P minus Z is equals to, let's say, 2. We can tell there are two angles starting from 90, and then odd multiple third into 3, 180. For P minus Z equals to 3, it will start from 60, then into 3 of it is 180, into 3 of it is nothing but 3 into 5 of it, 60 into 5 would be 300. So we'll be taking odd multiples, 3 odd multiples if P minus Z is 3. Okay? Similarly, if P minus Z is nothing but 4, the shortcut follows like first would be 45 degrees, then into 3 would be nothing but 135 degree,
then into phi of 45 would be nothing but 225 degree, and into 7 would be nothing but 315 degrees. Fine, makes sense. Now centroid. So one point of centroid is, it may or may not be a part of DRL. It may or may not be a part of DRL, but it will always lie on root locus. It will always lie on root locus. And its calculation is sigma p minus sigma z upon p minus z. There is no mod. There is no mod in denominator. Okay. Now let's move away. Let's move ahead and check out the breakaway point or break-in point whatsoever. So it is the point. It is the point where your root locus will break. Okay, it can be break-in point or breakaway point, break-in point or breakaway point. If it is a minima meaning d square k upon ds is positive, that is minima, then it is a break-in point. Positive meaning break-in point. If d square k upon ds square is negative at s is equals to a, that means it is a maxima, that means it is a breakaway point. Okay, this is a mathematical concept. Now let's move towards the calculation of that. Suppose you have got, you did dk upon ds is equals to 0. You have got some points and you have to confirm what all are breakpoints. Or what all, so breakpoints lie on root locus. Okay, breakpoint definitely lie on root locus. Now there can be, the breakpoint can be real also, or it can be imaginary. So for real, we'll definitely, since we have said that it will lie on root locus, we can directly check on real axis whether it is lying on root locus or not. Meaning whether it is lying, let's say, whether it is, so we'll clearly check whether it lying on root locus or not. Very simple. Okay, lying on root, suppose if it is falling somewhere here, let's say the s is equals to a point, we can tell. But what if it lies somewhere here? You can't tell, right? You can't directly tell. For that, there is an inspection method. You will either do sigma z minus sigma p, angle of sigma z minus p from point s is equals to a should be pi, n pi, let's say. Odd multiples of pi. That is method 1. That is a graphical method. Calculation wise, what you will do, you will find out gs hs ka angle. You will find gs at s is equals to n. You will see whether it's all multiple of pi or not. Now if someone asks you कि भैया बताओ value of k at that particular break point, तो यार दो कंडीशन आ जाती है, सिंपली दो कंडीशन आ जाती है कि k gs hs at that particular mod of that must be 1 from here, at that particular a must be 1. इससे पता चल जाएगा कि भैया what is the magnitude of that. अगर valid है तो उसका magnitude पता चल जाएगा. नहीं, उससे भी simpler method अगर चाहिए तो what we do is we'll calculate the distance of poles and distance of 0 from that particular point, from that s is equals to s naught, and what we will be doing is k is nothing but product of its distance from poles upon product of its distance from zeros. इसमें भी एक ट्रिक पॉइंट है. क्या वो ट्रिक पॉइंट है? लेट्स से suppose your equation is something like that, 2k into something. So we know the first rule, right? Rule number 1, that we need to make s positive and coefficient of x must be 1. So what we will do is we will take everything common. We will make coefficient of s1. तो उसमें क्या आ गया ना, k/2 into your function, कुछ तो आ गया. तो अभी हमने रूट्स का डिस्टेंस, पोल्स और जीरोस का उस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर लिया, बट दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ k/2. अगर k फाइंड करना है तो k इज इक्वल टू वॉट एवर एक्स वैल्यू हैव फाइंड इंटू 2 यू विल हैव टू डू. ठीक है, ये एकदम अपने को ध्यान में रखना है, बिल्कुल अपने दिमाग में उतर जानी चाहिए ये पर्टिकुलर बात. ठीक है, तो हमने देख लिया कि यार ब्रेक का पॉइंट मतलब रूट लोकस पे लाई कर रहा है, रियल है, इमेजिनरी है. रियल फाइंड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि रियल एक्सिस पे है कि नहीं फाइंड कर लो. इमेजिनरी है मतलब कहीं बीच में लाई कर रहा है तो उसका भी तरीका बहुत सिंपल है. विल सी कि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन मेक्स एंगल एज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. थ्योरेटिकली और ग्राफिकली सिग्मा जी माइनस सिग्मा पी इज इक्वल्स टू एन पाई. ठीक है, अब हमने बोला था कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट, अगर पॉइंट कहीं बीच में, रियल एक्सिस पे नहीं कहीं बीच में है, तो इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम एंगल ऑफ डिपार्चर एंड इट विल टर्मिनेट एट एंगल ऑफ अराइवल. तो एंगल ऑफ डिपार्चर और
अराइवल कैसे फाइंड करते हैं? हम स्ट्रिक्टली DRL की बात करें, उसमें एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे फाइंड किया जाता है? 180 माइनस 5p माइनस 5z, 5p माइनस 5z। एंड एंगल ऑफ अराइवल कैसे फाइंड किया जाता है भैया? 5e इज इक्वल टू 180 माइनस 5z माइनस 5p, 5z माइनस 5p। अभी इसमें कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई डोंट यू टेल मी कि व्हाट इज इंटरसेक्शन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद j ओमेगा एक्सिस? इसमें कोई नहीं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स को जीरो करते हो। सिंपल सी बात है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट जीरो कर दो, है ना। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि शॉर्टकट से कैसे फाइंड किया जाता है। इधर ही मैटर क्लोज। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी इसमें। व्हाट ऑल वी हैव सीन? वी हैव सीन द बेसिक रूल ऑफ एस, कि एस को पॉजिटिव करना, इसको कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए। उसके बाद में वी सॉ कॉन्सेप्ट दैट पोल ओरिजिनेट्स फ्रॉम root locus originates from pole and terminates at 0. So at pole k is equals to 0 and where it terminates k is infinity. उसमें भी 3 केसेस हो सकते हैं कि s on real axis, तो x on real axis, x कहीं इमेजिनरी के बीच में होगा और x इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो x अगर रियल एक्सिस पे है तो बहुत ही सिंपल है, इट विल मूव अबाउट रियल एक्सिस। अगर s इज इक्वल्स टू कहीं -1 प्लस और माइनस j के फॉर्म में आ जाता है तो इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम एंगल ऑफ डिपार्चर एंड इट विल टर्मिनेट एट एंगल ऑफ अराइवल। तो एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है? 5 थीटा d इज इक्वल्स टू 180 माइनस सिग्मा ऑफ 5p माइनस 5z। और एंगल ऑफ अराइवल क्या होता है? 180 माइनस थीटा z माइनस थीटा p। सिंपल। अभी क्या होता है कि अपन अगर कोई भी पॉइंट रैंडमली आपको पॉइंट दिया गया, उसका एग्जिस्टेंस ऑन रूट लोकस पूछा, तो अगर रियल पॉइंट है तो वी कैन डायरेक्टली सी रूट लोकस को लाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर इमेजिनरी है तो विल सी इट्स एंगल, विल सी j ऑफ s, h ऑफ s एट s इक्वल्स टू s नॉट, वेदर दैट एंगल कम्स आउट टू बी मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि वेदर इट लाई ऑन रूट लोकस और नॉट। सो यही कॉन्सेप्ट हम ब्रेक पॉइंट पर लगाते हैं। ब्रेक पॉइंट इज अ पॉइंट where root locus breaks. There can be break in point or break away point. Break in a point is point of minima. Minima मतलब d square k upon ds square should be positive. And break away point is point of maxima. माने d square k upon d square must be negative. ठीक है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा। अब दो जो पॉइंट आएंगे, मतलब ये कैसे मिलेगा? डी के अपॉन डी एस इक्वल टू 0 करने से बहुत सारे पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट रूट लोकस पे लाई करता है नहीं करता है, यू यूज़ द सेम प्रिंसिपल। अगर रियल है तो एक्सिस चेक कर लेंगे, मतलब रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस चेक कर लेंगे। अगर इमेजिनरी है तो दैट एंगल व्हेन यू दैट पॉइंट व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द एंगल मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, फिर तो हमने एंगल ऑफ डिपार्चर अराइवल भी डिस्कस कर लिया। वैल्यू ऑफ के का भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया कि विल मेक श्योर कि एस का कोफिशिएंट 1 है एंड पॉजिटिव है। और फिर हम दो मेथड से कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड विद बी डिस्टेंस ऑफ पोल्स अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पोल अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ जीरोस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि के जी ऑफ एस एच ऑफ एस मॉड ऑफ दैट मस्ट बी 1, उधर से भी के का वैल्यू आ जाएगा। अभी इफ़ पी इज़ नॉट इक्वल्स टू जी। हाँ, और एक पॉइंट ये था कि ब्रेक अवे पॉइंट ऑलवेज, ब्रेक पॉइंट्स ऑलवेज लाई ऑन रूट लोकस। देन कम्स कॉन्सेप्ट ऑफ असिम्प्टोड्स एंड सेंट्रोइड्स। तो असिम्प्टोड सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी पॉइंट अगर असिम्प्टोड और सेंट्रोइड की बात कब होती है? जब पी इज नॉट इक्वल टू जेड। असिम्प्टोड क्या है? 2k - 1 इंटू पाई अपॉन मॉड ऑफ p माइनस जेड। तो मान लो कि मॉड ऑफ p माइनस जेड इज़ 1, तब एंगल क्या होगा? वेरी सिंपली 180। अगर 2 है तो 90, और दूसरा क्या होगा? इंटू 3 ऑफ दैट इज़ 90 इंटू 3 270। अगर p माइनस जेड 3 है, पहला एंगल 60 होगा, तो दूसरा क्या होगा? इंटू 3 ऑफ दैट इज़ 180। 60 इंटू 5 वुड बी द थर्ड वन, दैट इज़ 300। 4 है तो 45, 135, 225 एंड 350। अभी सेंट्रोइड का एक पॉइंट है कि सिग्मा p माइनस सिग्मा z अपॉन p माइनस z, नो मॉड एट ऑल। उसमें एक पॉइंट ये है कि सेंट्रोइड मे और मे नॉट लाई ऑन रूट लोकस, बट इट विल ऑलवेज लाई ऑन रियल एक्सिस। इट विल ऑलवेज लाई ऑन रियल एक्सिस। So those were points in regards to DRL. Now let's move to CRL. तो CRL में यार ज़्यादा कुछ नहीं बदलता है। ओरिजिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। एग्जिस्टेंस ऑन CRL मैट चेंजेस। इसमें अपन देखते हैं कि इवन रहने चाहिए, है ना, राइट साइड में इवन रहने चाहिए। तो यहाँ पे जो है CRL लाई करेगा, यहाँ पे CRL लाई करेगा।
वेर एज यहाँ पे जो है DRL लाइक रे, समझ रहे हो ना। फिर असिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट सेम आ जाता है, बट यहाँ पे एंगल कंडीशन चेंज हो जाती है थोड़ी सी। इट विल बिकम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सो 2n पाई अपॉन p माइनस z। बहुत ही सिंपल है, एंड द एंगल स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, बस, ठीक है, यही बात होगी। बाकी ब्रेक पॉइंट का भी वही है, रियल का तो रियल एक्सिस पे अगर वो पॉइंट मिलता है तो वो ब्रेक पॉइंट है कि नहीं आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है, विल चेक CRA। अगर वो मान लीजिए कोई इमेजिनरी पॉइंट आ गया -1 + -j का टाइप्स, तो क्या करोगे आप उसको g ऑफ एस h ऑफ एस में डालोगे, और यहाँ पे एंगल आप चेक करोगे कि इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, 2 पाई आता है कि नहीं, 3 पाई 4 पाई आता है कि नहीं, 6 पाई आता है कि नहीं, एंड सो ऑन। और एक कॉन्सेप्ट चेंज होता है, दैट इज एंगल ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। सो डिपार्चर इज 0 माइनस 5p माइनस 5z, एंड एंगल ऑफ अराइवल इज 0 माइनस 5z माइनस 5p, बस इतना ही डिफरेंस है। तो डिफरेंस कहाँ आता है, एक तो एंगल में आता है एंगल कंडीशन मतलब एसिम्प्टोट्स, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स वेदर दे आर ब्रेक पॉइंट और नॉट। तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 2k माइनस 1 इंटू पाई था, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। यहाँ पे एसिम्प्टोट में क्या होता है, 2k पाई अपॉन p माइनस है, नॉट p माइनस है। और एंगल वेदर दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज अ ब्रेक पॉइंट और नॉट, तो क्या होता है, वो पॉइंट g ऑफ एस h ऑफ एस में डालने के बाद दैट हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ 2n पाई, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा एंगल ऑफ अराइवल डिपार्चर, DRL में क्या था, 180 माइनस 5 ऑफ d माइनस 5 ऑफ p माइनस 5 ऑफ z वॉज एंगल ऑफ डिपार्चर। इधर क्या होता है, 5 ऑफ d इज इक्वल टू 0 माइनस 5 ऑफ p माइनस 5 ऑफ z, तो 180 गॉट्स रिप्लेस्ड बाय 0, दैट्स इट। I hope that is clear. Now let's move ahead and quickly look at the certain important points. So DRL and CRL are always symmetric about real axis. जितना जैसे ऊपर रहेगा वैसे ही नीचे रहेगा, that's first point. Second point, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करना पड़ता है। उसमें क्या करोगे ना, उसमें आप डी के अपॉन डी आप ब्रेक पॉइंट्स फाइंड कर लोगे पहले तो। लेट्स से S1 S2 दोनों इमेजिनरी होने चाहिए। तो रेडियस क्या होता है ना, S1 + S2/2, 0, दिस इज सेंटर। और रेडियस क्या होता है, S1 - S2/2, मॉड ऑफ S1 - S2/2, दैट इज रेडियस, ठीक है, ये ध्यान रखना। और दो फ्रिक्वेंटली अकरिंग क्वेश्चंस है जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट थ्रू जाने की भी ज़रूरत नहीं है, एसच जाने की भी ज़रूरत नहीं है। S + A अपॉन S इंटू S + B इंटू S + C ये फॉर्मेट रहो, या तो फिर S + A अपॉन S + B S + C रहो। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, बहुत ही स्ट्रेट, सेंटर बिकम्स -a, 0 एंड योर रेडियस बिकम रूट ऑफ a - b इंटू रूट ऑफ a - c। और अगर क्वेश्चन ऐसा रहा कि यार k इंटू S + A अपॉन S इंटू S - b, करेक्ट, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन रहा तो फिर आप जाओगे डी अपॉन ds एंड सो ऑन, ठीक है। ये प्रोसेस रहेगा हमेशा कि सेंटर इज ऑलवेज S1 - S2 अपॉन S1 + S2 अपॉन 2, 0 एंड रेडियस इज ऑलवेज S1 - S2 अपॉन 2, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू द प्रॉब्लम्स। तो क्या कहते हैं कि सम क्वेश्चन इज गिवन, वैल्यू ऑफ k एट s इज इक्वल टू -2 ऑन रूट लोकस। कुछ नहीं है यार, उस वैल्यू को सब मॉड ऑफ gs एट s इज इक्वल टू 2 मस्ट बी इक्वल टू -1, इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। फाइंड कर लो यार, सिंपल से, दैट्स वन वे। Otherwise what you will do, you will calculate all the pole zeros, then you will do product of poles upon product of zeros। से इधर कोई भी ज़ीरो नहीं है, बस न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन will give you the value of k। then comes next question जिसमें क्या है, BAP और BIP मतलब ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिख रही है। सबसे पहले तो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करोगे, फिर आप dk अपॉन ds करोगे इक्वल्स टू 0, कुछ मिलेगा आपको, तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिल गया, 2 मिल गया आपको। फिर आपको देखना है कि विच वन लाइज ऑन, सिंस यहाँ पे 2 ही ऑप्शन थे और दोनों अलग अलग थे, तो वी कैन डायरेक्टली गेट आवर आंसर। बट अदरवाइज अगर कोइंसाइडिंग होता तो अपने को चेक करना पड़ता होता कि वेदर दैट पर्टिकुलर पॉइंट लाई ऑन द रूट लोकस और नॉट,
तो यहाँ पे -4.26 और -7.73 आ गया। -4.26 इधर कहीं तो आएगा एंड एक इधर आ गया, तो डेफिनेटली दिस पोर्शन लाई ऑन रूट लोकस, दिस पोर्शन लाई ऑन रूट लोकस, तो आंसर अपना क्या हो गया? गॉट इट, गॉट इट, दैट इज द फंडामेंटल थिंग टू कंसिडर. Now let's move ahead and check angle of asymptotes. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो कुछ नहीं है. एंड देन angle made by asymptote with real axis and point of intersection of asymptote, that is nothing but centroid sigma z, that is sigma p minus sigma z upon p minus z. Okay, that also you can calculate, no problem at all. Then the value of k at s is equals to -2. अब वैल्यू पूछ लेता है तो आपके पास दो तरीके होते हैं, इधर ऑफ डिस्टेंस ऑफ देम. मेथड 1 कैन बी डिस्टेंस ऑफ देम फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ देम फ्रॉम पोल, एंड देन डिनोमिनेटर में आएगा कि डिस्टेंस ऑफ इट फ्रॉम जीरोस, दैट इज़ वन वे. अदरवाइज पुट दैट पॉइंट एंड मॉड ऑफ GSHS इक्वल्स टू 1, दैट्स अनदर वे. किसी भी तरीके से आप कर सकते हो. देन सिग्मा पूछ लिया है, सिग्मा बहुत सिंपल है, ज़ीरो, कोई उसमें है नहीं बहुत बड़ी बात. देन द क्वेश्चन इज़ कि यार ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन दे दिया है कि s प्लस ए एस प्लस बी एस माइनस बी. तो अभी हमने देखा कि इसके हम ब्रेक पॉइंट्स फाइंड करेंगे. तो ब्रेक पॉइंट क्या है भैया? ब्रेक पॉइंट आ गए दिस कॉम्प्लेक्स ब्रेक पॉइंट्स, तो सुपर. देन सेंटर इज गोइंग टू बी S1 प्लस S2 बाई 2, 0. That is nothing but -1 S1 प्लस S2 है ना, तो -1 आ जाएगा है ना, -1, 0. एंड रेडियस क्या आ जाएगा भैया? √2. दैट्स ऑल. ठीक है. देन क्या है? सेंटर एंड रेडियस ऑफ रूट लोसाई, अगेन सेम काइंड ऑफ इक्वेशन, S+3 अपॉन S इंटू S+2. तो इधर भी आप सेम ही करोगे. दैट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड अप्रोच कि फ्रीक्वेंट पॉइंट फाइंड कर लो और कैलकुलेट कर लो, नो प्रॉब्लम. नाउ यहाँ पे यार कमेंट ऑन डिश BAP एंड BAP. तो यार ये क्या है? मिनिमा है मैक्सिमा. ये क्या है? मिनिमा है मैक्सिमा है. ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी BIP. दिस इज नथिंग बट BAP. सिग्मा 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड सिग्मा 2 इज पॉइंट ऑफ BIP. Clearly, right? Then comes next question, and I believe this is okay, last but one question. So very important looks like. Characteristic equation is given. Okay. फिर क्या बोल रहा है ये? It has roots are always real. 2 of the roots tends to infinity. Okay. तो पहले तो यार आप इसको सॉल्व कर दो. तो सॉल्व करने के लिए आपको GS फाइंड करना पड़ेगा, GSHS. पहले तो आप इसको सॉल्व कर दो, है ना. इसको सॉल्व कर दोगे आपको थीटा k मिल जाएगा, बिकॉज p माइनस z इज नथिंग बट 2. थीटा k मिल गया. इट्स रूट्स आर ऑलवेज ऑन रोल एक्सिस, एक कह रहा है. इट्स रूट्स आर ऑलवेज रोल एक्सिस, एक कह रहा है. मुझे एक बात बताओ, इसको आप तोड़ोगे तो ऐसा कुछ बनेगा. रूट लोकस क्योंकि ओपन लूप पोल्स का बनता है ना. रूट लोकस हमेशा ओपन लूप पोल का बनता है, GSHS का ही बनता है. ऐसा कुछ बनेगा क्या? रूट्स ऑलवेज एक्स एक्सिस पे है. देन phi d, let's see this is one of the important question. Phi d, whether we'll check whether it is DRL or CRL. If nothing is mentioned, we'll take it as DRL. 180 minus phi p minus phi z. Phi p कहाँ से? phi p माइनस phi d. तो एक कॉम्प्लेक्स पोल फाइंड कर लो यार. कॉम्प्लेक्स पोल, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पोल ले लो. इसको और इसको ले लो. हाँ, तो phi p phi z. अभी क्या वो इस मतलब पॉजिटिव इसका देखना है, नेगेटिव से हर इससे आप हॉरिजॉन्टल बना दीजिए. तो ये एंगल देख लो, ये एंगल देख लो, और ये एंगल देख लो. तो सिग्मा p माइनस सिग्मा z, दैट विल गिव यू phi p. Okay, so this will be the type of questions coming.
So following things to be taken care is see whether it's CRL, DRL, and then if questions are asked majorly on intersection point with on real axis, then you need to find out breakpoints. To identify whether they are breakpoints or not, we need to check whether they lie on root locus in two ways. If they are real, then normally on root locus, and if they are somewhere I plus j wala thing, matlab 1 plus or minus j wala thing, then we will be seeing whether it's multiple of pi or 2 pi depending upon DRL or CRL. That's one thing. It might ask you intersection with imaginary axis, meaning roots of auxiliary equation E. Okay. Yeah, that's all. Thank you.